topics which we will be discussing is demerits of a company and types of a company. In the previous video, I have told you about the features and merits of a company. I hope you have got all the points which I have told you. If you have any doubt in any of the point which I have told you about both the topics, regarding both the topics, so you can ask me. Okay, so let's start today first with demerits of a company, and then we will be discussing about types of a company. So first we will be discussing about the limitations of a company. So the first limitation is कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जब हमको किसी भी चीज़ को करने में बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ें, बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ें, बहुत ईज़िली कोई काम ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है. जब कोई चीज़ बहुत कठिन हो, मतलब कठिन का इन द सेंस, यहाँ पे अगर आप कंपनी के फॉर्मेशन के सेंस में देखो तो मतलब ईज़िली कंपनी नहीं बन जाती है. जैसे कि हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप हम लोग देखें तो क्योंकि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना भी कंपलसरी नहीं है, तो आप लोग जिसके संग पार्टनरशिप करना चाहते हो उसके संग बस आप अपना एग्रीमेंट बनाओ और अपना रजिस्ट्रेशन करा दो अपना GST ऑफिस में थ्रू योर एग्रीमेंट. पेन कार्ड ले लो कंपनी का, एंड देन यू कैन रन अ पार्टनरशिप firm easily. But when it's a case of company, you have to take several procedures, because it is given in the Companies Act 2013 only that if you want to form a company you have to follow a various sort of steps. So following these steps is a very complex work. मतलब कि काफ़ी सारे स्टेप फॉलो करने, तो ईजी नहीं होता है कंपनी को फॉर्म करना. ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स वर्क टू डू, एंड दैट इज़ वाई वी कैन से दैट फॉर्मिंग अ कंपनी इज़ अ कॉम्प्लेक्स thing, you know. So it's a complexity in formation, because we have to follow so many steps and so many procedures, so that makes so complex and so difficult for us to form a company. It cannot be formed so easily as it seems to. Okay. सेकेंड पॉइंट है हमारा लैक ऑफ सिक्रेसी. अगर आप हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप देखो तो उसमें क्या होता है बेटा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है दैट द पार्टनर्स और द सोल प्रोप्राइटर हैज़ टू रिवील देयर प्लान्स, देयर बिजनेस रिपोर्ट्स, देयर operating results. They don't have to reveal it to the public, to the general public or the registrar office where they are getting registered. But when it comes to the case of company, in case of company, according to the Companies Act 2013, they have mentioned there that all the business results, all the business accounts, all the company operating functions, all their function, whatever company members, whatever company owners, whatever company management are doing inside the business, whatever accounts reports they have to reveal it time to time to the registrar of company and to the general public as well. So now because of this they are not having secrecy. Secrecy का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी से अपने चीज़ों को छुपा पाओ तो आप सीक्रेट मेंटेन करते हो, तो डेट इज़ नोन एज सिक्रेसी. ठीक है, जैसे कि आप अपने, अगर आप जनरल एग्जाम्पल देखो तो एक जो जनरल स्टोर होता है आपके एरिया में, जनरल स्टोर की शॉप होती है, आप उससे ये नहीं पूछते हो कि अंकल आपको कितना प्रॉफिट हुआ, या फिर अंकल आप अपने रिपोर्ट्स दिखाइए, अपने अकाउंट्स दिखाइए, आपने कितना खर्चा किया, आपको कितना आपने बचाया. वी नेवर आस्क टू अ जनरल स्टोर शॉप दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स यू हैव और व्हाट प्लान्स यू हैव इन फ्यूचर और व्हाट ऑपरेशंस यू आर डूइंग राइट नाउ. We just go simply there and buy a product which you want to. But when it comes to the case of company, whenever we are buying shares of a particular company, we see the balance sheet of that particular company, we see the analytical reports of that particular company.
that whether a company is performing well or not, whether it is pursuing profit or not, whether it's generating profit or not. अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, उसके ऑपरेशंस अच्छे से नहीं चल रहे हैं और उनके जो फर्दर प्लान्स हैं इन फ्यूचर दैट आर ऑल्सो नॉट सो प्रॉमिसिंग, सो वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट आवर मनी इन देयर शेयर ना, we are going to buy the share of some other company. Okay, so because of this they have to reveal their reports, their accounting results, or you can say their financial position they have to reveal, including balance sheet or PL account, profit and loss account, as well as their future plans, their operating functions. They have to reveal all these time to time to the registrar of company or to the general public as per the rules and regulations of Companies Act 2013. So there is a lack of secrecy in case of company. The third point is impersonal work environment. Impersonal work environment कैसे होता है बेटा? Because in a company you can say a hierarchy structure, मतलब कि लेवल्स में लोग डिवाइड होते हैं. पहले ओनर होता है, फिर मैनेजमेंट होता है, फिर सुपरवाइज़र्स होते हैं, फिर आपके जो लेबरर्स होते हैं, ऐसे करके डिवाइड रहता है. तो बिकॉज सबकी पोजीशन डिसाइडेड है तो लोग पर्सनल नहीं हो पाते हैं. पर्सनल नहीं हो पाते हैं तो फर्म पे उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उतना अपनेपन से काम नहीं कर पाते हैं जितना आपके पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में कर पाते हैं. ठीक है, क्योंकि जो ओनर होता है और मैनेजमेंट होता है दोनों अलग अलग होते हैं. ठीक है, दे आर नॉट सेम. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट दे विल डू दैट पर्टिकुलर वर्क ओनली फॉर दैट यू आर पेइंग. जितना आप उनको पे करोगे वो उतना ही काम करेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द कंपनी एज कंसीडरिंग द कंपनी ऑफ देयर ओन. ऐसा होता है, नॉर्मल है. ठीक है, ऑल्सो क्योंकि ये लोग रेगुलर टच में नहीं रहते हैं, ना ही ओनर और ना ही मैनेजमेंट रेगुलर टच में रहता है डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ के, लेबरर्स के, वर्कर्स के. तो उनको जितने भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जितने भी डिमांड्स होती हैं, जितनी भी कंडीशंस होती हैं, जितनी भी जो भी आपके लेबर से रिलेटेड और वर्कर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको थ्रू सुपरवाइजर्स ही पता चलती है. ठीक है, दे आर नॉट इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट रिलेशन विद द वर्कर्स ऑफ द कंपनी. सो वो चीज़ जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन हो पाता है ना, उसकी वजह से भी एक इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. इम्पर्सनल मतलब जिसमें आप पर्सनली अपने आप को कंपनी से रिलेट ना कर पाओ और पर्सनली कंपनी के लोगों से रिलेट ना कर पाओ. ठीक है ना, so that is why company is having a impersonal work environment. Fourth one is numerous regulations. कई सारे regulations होते हैं business में. When you are having a business form as like of company, when you are following a company form of business organization, कई सारे regulations आपको follow करने पड़ते हैं. As like मैं आपको example देती हूँ. क्या होता है कि जब आपका न्यूमरस रेगुलेशंस को आप ले के चलते हो ना, तो उसमें रेगुलेशंस मतलब क्या होता है. जैसे कि आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में कई सारे रेगुलेशंस होते हैं आपके पास. जैसे कि आप बार बार टॉयलेट नहीं जा सकते पीरियड में. यू हैव टू अटेंड द पर्टिकुलर पीरियड when teacher is teaching. ठीक है, यू कैन नॉट बंक द क्लास अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन. यू कैन नॉट कम लेट टू द स्कूल. You have to be in time, you have to be punctual while coming to the school. Okay, और आप कैसी भी ड्रेस पहन के स्कूल नहीं जा सकते. You have a uniform and you have to wear. So these are the regulations which are imposed upon you by the school management. ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बताया कि जो हमारा कंपनीज़ होती हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, दीज ऑल कंपनीज़ आर गवर्न बाय द कंपनीज़ एक्ट 2013. तो कंपनीज़ एक्ट 2013 में कई सारे ऐसे लीगल प्रोविज़न्स और लीगल कंपल्शंस दिए हुए हैं जो कि कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कंपनी के फंक्शनिंग पे, जिसकी वजह से कंपनी फ्रीली फंक्शन नहीं कर सकती है. जैसे कि किस तरीके से उनकी ऑडिट होगी, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से वो अलग अलग रिपोर्ट्स फिल करेंगे, किस तरीके से अगर
उनको किसी भी कंपनी में कुछ भी कोई चेंजेस लाना है तो उनको कई सारे इन डॉक्यूमेंट्स को फिल करके लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनको कंपनी स्टार्ट करनी है तो उनको कई जगह से लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, कई जगह से उनको सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि सेबी से सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल रहे हैं तो हमें फार्मास्यूटिकल लाइसेंस चाहिए होगा। तो ऐसे कई सारे उनको प्रोविज़न्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो उनके फ्रीली फंक्शनिंग को, कंपनी के फ्रीली फंक्शनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वो फ्रीली फंक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप देखो तो उसको किसी इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ही कैन वर्क एज ही वांट टू, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन अपना बिज़नेस चला रहा होता है, उसके ऊपर ऑडिटिंग का और कैसे वो रिपोर्ट्स फाइल करेगा, कैसे जीएसटी भरेगा, इतने बर्डन नहीं होता है, इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप दे आर वर्किंग मोर फ्रीली, दे आर फंक्शनिंग मोर फ्रीली एज कम्पेयर टू द केस ऑफ कंपनी. In company there are a lot of restriction on how the company should work or function. So that is why it is given here that there is a numerous regulation and it's a demerit. ठीक है. Delay and decision making. So now why the question arises is why the decision making is delay in a company form of business organization. Why the decisions of a company are whatever decision regarding anything which is to be taken in a company is being delayed. The simple reason is, see, the company is democratically managed by the board of directors, which is followed by the top, middle and lower level of manager. So because see, board of director है, उसके बाद 3 levels of manager है, top, middle and lower, उसके बाद supervisor है, then workers है. So whatever decision we have to take, we have to consult the opinions of all the managers of different levels as well as supervisor, and then the board of director by considering themselves opinion they are taking the decision. So it's a long procedure because किसी भी चीज़ के बारे में decision लेना होगा तो they have to consider the opinions of managers as well, the different level of manager, the supervisor, and after taking their opinions they are considering themselves that the opinion which they have give is having some meaning or not, is useful or not. They will decide it and then they will come upon a single opinion or single decision which arrived after a discussion of themselves only. Okay, and that is why decision making is delayed in company. आफ्टर दैट देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कंपनी में देखो केवल एक पर्सन जुड़ा नहीं होता है. कंपनी में आप पे कंज्यूमर्स भी जुड़े होते हैं, आप कई सारे कंपनीज़ के प्रोडक्ट खरीदते हैं. कंपनी में आपके वर्कर्स भी जुड़े होते हैं और कंपनी में आपके स्टेक होल्डर्स भी जुड़े होते हैं. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदती है वो कंपनी की ओनर हो जाती है, तो उसको हम लोग स्टेक होल्डर भी बोलते हैं. अब आप एक कंपनी से क्या, आप एज अ कंपनी, आप एज अ कंज्यूमर एक कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो कंपनी आपको अच्छे से अच्छा सामान सस्ते से सस्ते रेट पे दे. ठीक है. अब अगर आप किसी कंपनी में एज ए वर्कर काम कर रहे हो तो आप उस कंपनी से क्या उम्मीद रखोगे कि हमें कंपनी अच्छे से अच्छी सैलरी दे, हायर से हायर सैलरी प्रोवाइड करे. काम करवा ले बट हायर सैलरी प्रोवाइड करे. अगर आप एज अ स्टेक होल्डर देखो, एज अ शेयर होल्डर देखो अपने आप को इन अ कंपनी, तो आप क्या चाहोगे कि कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दे. डिविडेंड मतलब क्या होता है, जब भी हम कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो कंपनी हमको हर साल कुछ अमाउंट ऑफ पैसा देती है एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, एज बीइंग अ प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज डिविडेंड. ठीक है, टाइम टू टाइम मिलता रहता है. तो कंपनी हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दे और जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है इस शेयर की. इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिस शेयर पे हमने मान लो मैं 10 रुपये की शेयर वैल्यू पे शेयर ख़रीदा था, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ के कम से कम 15-20 रुपये तो हो ही जाए, ताकि हम अगर उसको फर्दर बेचें तो हमें प्रॉफिट और नुकसान ना हो. तो अब इतने सारे लोगों की डिमांड्स अलग अलग हैं. दे वॉन्ट समथिंग डिफरेंट. ईच एंड एवरी पर्सन वॉन्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी. So it's become cumbersome for the manager to fulfill the demands, to fulfill the interest of all the members which are connected to the company as being a stakeholder, as being customer or as being worker or employee.
So that is why there is a conflict of interest. Manager has to satisfy the interest of each and every sector, whether it is stakeholder or any other. So to manage the interest of every sector, they have to do a lot of hard work, and sometimes they are not able to fulfill the demands of one sector or the two sector. That is where the conflict arises. Okay, so that is why it is known as that there is a conflict of interest when it's a business, when it's a company form of business organization. So we have discussed total of 1 2 3 4 5 6 of limitations of a company form of business organization. The first one was complexity in formation, second one was lack of secrecy, third one was impersonal work environment, fourth one was numerous regulations, fifth one was delay in decision making, and the sixth one was conflict in interest. Okay, now we will be discussing about the types of a company. Okay, so there are two types of company. The company is basically divided into two subtypes. That is, first is private company and the second is public company. Okay, so first we will be discussing about private and then we will be discussing about public company. A private company means a company. प्राइवेट कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जो कि रिस्ट्रिक्ट करे द राइट ऑफ ए मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर. मतलब कि वेन एवर यू आर हैविंग अ शेयर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, यू कैन नॉट ट्रांसफ़र इट टू अदर पर्सन. मतलब कि अगर मान लो हमने किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद लिए तो हम उनके शेयर्स को दूसरे पर्सनस को नहीं बेच पाएंगे. ठीक है, वी हैव टू रिसाइड दो शेयर विथ टिल टू अस ओनली. हमको अपने पास ही वो शेयर्स रखने पड़ेंगे. वी कैन नॉट ट्रांसफ़र दो शेयर्स. ओके, इट इज़ अ मिनिमम ऑफ 2 and a maximum of 200 member excluding the present and past employees. जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम दो लोग एज अ मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं. इसमें आपका प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ को नहीं जोड़ा जाता है कंपनी के. ठीक है, डज नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़. ठीक है, अब आपकी जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक को बुलाती ही नहीं है कि हाँ आप मेरे शेयर खरीदिए. पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करती है. वो कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनको इनवाइट करती है कि हाँ आप मेरे शेयर्स खरीदिए. और अगर वो सिलेक्टेड मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद देते हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं इस राइट से कि वो दूसरे को वो शेयर बेच सकें, क्योंकि दे कैन नॉट पास देयर शेयर टू जनरल पब्लिक. अगर उनको ऐसा कुछ करना है तो उन्हें कंपनी से परमिशन लेनी होगी. ठीक है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. इट इज़ नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम. ये नेसेसरी होता है प्राइवेट कंपनी के लिए कि उन्हें अपनी कंपनी के नेम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा. जैसे कि अगर मान लो हम एक प्राइवेट कंपनी मैं खोल रही हूँ विद द नेम ऑफ कौशिकी, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा अपनी कंपनी के बाद? कौशिकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अगर आप किसी भी कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जुड़ा हुआ देखो तो दैट मीन्स दैट कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है, इफ़ अ प्राइवेट कंपनी contravenes in any of the aforesaid provisions, it ceases to be a private company and loses all the exemption and privilege to which उसको मिली होंगी जो भी. अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी प्रोविज़न का जो कि कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है उसको फॉलो नहीं करती है रिगार्डिंग प्राइवेट कंपनी जो दिया गया है, तो उसका जो स्टेटस होता है प्राइवेट कंपनी का उसको सीज़ कर दिया जाता है. वो प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाती है फिर. और जो भी एग्जेम्पशन और प्रिविलेजेस, जो भी फ़ायदे और जो भी फ़ायदे उसको मिल रहे होते हैं एज बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, वो उसको नहीं दिए जाते हैं. The following are some of the privileges of a private limited company as against a public limited company. अब नीचे जो है वो आपके कुछ privileges हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ exemptions हैं जो आपको दिए जाते हैं for being a private limited company and not for being a public limited company. A private company can be formed by only 2 members whereas 7 people are needed to form a public company. अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम आपको 2 लोग चाहिए होंगे. 2 लोग में ही बन जाएगी. लेकिन अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम आपको 7 लोग चाहिए होंगे.
ठीक है। तो पहला प्रिविलेज तो ये होगा 2 लोग में आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। दूसरा प्रिविलेज है देयर इज़ नो नीड टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस एज पब्लिक इज़ नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपना प्रॉस्पेक्टस जनरल पब्लिक को इशू नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि इनको जनरल पब्लिक को बुलाना ही नहीं होता है उनके शेयर्स खरीदने के लिए। ये लोग प्राइवेटली सेलेक्ट करते हैं कि वो लोग कौन कौन से मेंबर को अपने शेयर बेचेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हम अगर जब प्राइवेट कंपनी जो होती है, क्योंकि वो पब्लिक को तो बुला नहीं रही होती है शेयर खरीदने के लिए, जिन लोगों को वो प्राइवेटली इनवाइट करती है कि हाँ आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदें, वो लोग अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं भी देते हैं, प्राइवेट कंपनी के पास अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं भी आता है तो भी कंपनी अलॉट करेगी शेयर्स जिन लोगों को उसने इनवाइट किया है, ठीक है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब एक ऐसा कैपिटल जो होती है ना कंपनी की, उसको शेयर्स में डिवाइड किया जाता है, तो आपको पता होगा, तभी शेयर होल्डर बनते हैं लोग, शेयर मार्केट में बेचे जाते हैं। लेकिन जब हम लोग कैपिटल को अलग अलग उसमें पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कितनी कैपिटल बिजनेस को स्टार्टिंग में मिल जानी चाहिए शेयर होल्डर्स थे, ताकि वो अपने शेयर जो है शेयर होल्डर को इशू कर सके और बिज़नेस कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन वैल्यू आपको नहीं भी मिली है तो भी आप शेयर्स लोगों को प्राइवेटली इशू कर सकते हो। A private limited company can start business as soon as it receives the certificate of incorporation. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, जैसे ही उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कि कंपनी बनने का जैसे उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, वो वैसे ही तुरंत अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्जन नहीं होता है कि जब तक उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वैल्यू कैपिटल की नहीं मिलेगी, तब तक वो लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं होता है। जैसे उनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिले वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें। फोर्थ पॉइंट हमारा है A private company needs to have only 2 directors as against the minimum 3 directors in case of a public company. प्राइवेट कंपनी में केवल 2 डायरेक्टर की ज़रूरत होती है मिनिमम, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी में देखो तो उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर तो होने चाहिए। हाउएवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर बोथ द टाइप ऑफ कंपनीज इज 15। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो आप रख सकते हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी का केस हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी का केस हो, दोनों ही केस ऑफ कंपनीज में इफ़ यू वांट टू हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर देयर शुड बी ऑफ the value is decided by the Companies Act as being 15. Fifth point and the last point as being the part of privilege of a private company is a private company is not required to keep an index of members while the same is necessary in case of public company. पब्लिक कंपनी में क्या होता है, हम लोग पब्लिक को इनवाइट करते हैं हमारे शेयर खरीदने के लिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी में हम लोग प्राइवेटली डिसाइड करते हैं कि किन लोगों को हमको अपने शेयर बेचने हैं। तो यहाँ पे मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन इनको नहीं रखनी होती, कंपल्जन नहीं रखना है तो रखे, नहीं रखना है तो नहीं रखी, कौन मेंबर जो इनके शेयर खरीदते हैं। लेकिन क्योंकि पब्लिक कंपनी में वो लोग पब्लिक को इन्वाइट करते हैं तो उन्हें हर मेंबर की इन्फॉर्मेशन का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। So these are the 5 points regarding the privilege which a private company receives as being a private company and not being a public company. Now we will see that what is public company is all about. Public company. A public company means a company which is not a private company. अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो क्या होगी, पब्लिक कंपनी। As per the Companies Act, public company is one. Companies Act के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 7 नंबर्स की ज़रूरत हो, 7 मेंबर्स की, टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट अ कंपनी, एंड नो लिमिट्स ऑन मैक्सिमम नंबर। और कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं कंपनी में, लेकिन मिनिमम कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी यू हैव टू नीड अप 7 मेंबर्स टू स्टार्ट अ कंपनी, बट there is no any limitation regarding a maximum number of members in a company when it's a case of public company. Has no restriction on transfer of security. जो पब्लिक कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बेच सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़। पब्लिक कंपनी को प्रोहिबिट मना नहीं किया जाता है कि वो लोग पब्लिक को सब्सक्राइब, पब्लिक को बुलाएं, इनवाइट करें, प्रॉस्पेक्टस इशू करें ताकि पब्लिक उनके शेयर्स खरीदे, जबकि प्राइवेट कंपनी में वो लोग पब्लिक को अपने शेयर खरीदने के लिए इन्वाइट नहीं कर सकती। However, a private company which is a subsidiary of a public company is also treated as a public company.
प्राइवेट कंपनी बेसिकली सब्सिडियरी होती है। सब्सिडियरी मतलब एक्सटेंड कर दिया जाए अगर किसी चीज़ को, तो वो उसी के चीज़ को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी। तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी क्या है? प्राइवेट कंपनी, जिसको हम लोग एज अ पब्लिक कंपनी भी कभी कभी ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। तो इसके नोट साथ साथ बना के चलना। ओके, सो आज हम लोगों ने डिस्कस करी डिमेरिट्स एंड द टाइप्स ऑफ ए कंपनी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द कंडीशंस और द प्रोविजंस or the documents necessary for forming a company, for the incorporation of a company. ठीक है, till then see the video, and if you have any doubt regarding any topic in this chapter, so you can ask me, because by Wednesday we will be starting third chapter. Okay, so you can ask me all the confusions, all the doubts which you have in this chapter, okay, through comment section or through WhatsApp as per your wish. Till then, see the video, and thank you and have a nice day.